الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنک عربی گرامر کے آج کے اس چھٹے درس میں ہم پچھلے لیکچر کو ہی تھوڑا سا دہرائیں گے، اس کے بعد اس کی مزید تفصیل دیں گے۔ ہم آج اس درس میں کوشش کریں گے کہ اعراب کے لحاظ سے اسم کی جو قسمیں ہیں یا اسم کو جاننے کے لیے جو چوتھی چیز امپورٹنٹ ہے جس کو ہم اعراب کہتے ہیں، اعراب کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے جانی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ عربی کا خاصہ ہے، آدھا گرامر جو عربک ہے وہ اسی اعراب کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گئی، اس کے بارے میں رولز آپ کے سمجھ میں آ گئی، تو آپ قرآن مجید کا کافی حصہ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے لیکچرز میں عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس اسم کو جاننے کے لیے 4 چیزوں کی معلومات ضروری ہے۔ اگر آپ اسم کے بارے میں جانیں، اسم کے بارے میں پڑھیں، قرآن مجید میں جہاں جہاں اسم استعمال ہوا ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ جانیں تو آپ کو 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اسم کا جنس کیا ہے، یعنی یہ ہمارے پاس مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسم کا عدد کیا ہے، یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اسم کی وسعت کیا ہے، یعنی جس اسم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ اسم معرفہ ہے، خاص اسم ہے یا نکرہ ہے، عام اسم ہے۔ اور آخر میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ اسم جو ہے یہ کس اعرابی حالت میں ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے جانا کہ ہمارے پاس اسم کے 3 اعرابی حالات ہوتے ہیں۔ اصلاً جو اسم ہے وہ اعرابی حالت کے حساب سے رفع میں ہوتا ہے یا اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں، اور کسی کنڈیشن کی وجہ سے اسم رفع سے نکل کر یا تو وہ نصب میں چلا جاتا ہے جس کو ہم منصوب کہتے ہیں، یا پھر وہ جر میں چلا جاتا ہے جس وقت اس اسم کو ہم مجرور کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے، آگے جانیں گے، بٹ ابھی آپ یاد رکھیے گا اسم جو ہے اعرابی حالات کے حساب سے یا تو اسم ہمارے پاس مرفوع ہوگا، رفع میں ہوگا، یا منصوب ہوگا، نصب میں ہوگا، یا پھر اس کی حالت جو ہے حالت جر میں ہوگا جس کو ہم اسم مجرور کہتے ہیں۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ اعرابی شکل میں نے جو آپ کے سامنے پچھلے بار عرض کیا کہ ہمارے پاس جب ہم اعراب کی بات کرتے ہیں تو اعراب میں ہمارے پاس 2 طرح سے اسم کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، یا تو اعراب بالحرف ہوگا، آخر میں نون تبدیل، یعنی نون جو ہے وہ لاسٹ میں آئے گا، اس سے پہلے یعنی ہمارے پاس واو یا الف جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس اعراب بالحرکت بھی ہے کہ آخر میں ہمارے پاس حرکت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کا جو لیکچر ہے اس میں آپ یاد رکھیے کہ اعرابی شکل کے لحاظ سے بھی اسم کی قسمیں ہیں، یعنی اعرابی شکل میں جو تبدیلی آتی ہے اسم پر، اس حساب سے ہم اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مبنی اسم، دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں معرب۔ مبنی ایسا اسم ہے جو اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک لفظ ہے موسیٰ، یعنی ایک پیغمبر کا نام، یا ویسے بھی ہم نام رکھتے ہیں موسیٰ۔ موسیٰ جو ہے یہ تینوں اعرابی حالت میں، چاہے یہ مرفوع ہو یعنی رفع میں ہو، چاہے منصوب ہو یعنی نصب میں ہو، یا چاہے جر میں ہو، مجرور ہو، تینوں حالتوں میں یہ موسیٰ ہی لکھا جائے گا۔ اس کی شکل جو ہے یہ موسیٰ ہی پڑھی جائے گی، موسیٰ ہی پڑھا جائے گا، چاہے وہ نصب میں ہو، رفع میں ہو یا جر میں ہو۔ اسی طرح عیسیٰ، رفع، نصب، جر، تینوں حالتوں میں یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کبرا کو بھی تینوں حالات میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا لکھا جاتا ہے، مگر اس کی حالت کبھی مرفوع ہوگی، کبھی منصوب ہوگی، کبھی مجرور ہوگی۔
अब आप सवाल पूछ सकते हैं, ये कैसे हमें पता चलेगा? ये इस तरह पता चलेगा कि दूसरे अल्फाज जो उस वक्त इस्म के साथ जुड़े हों, वो हमें बताएंगे कि इस्म जो है ये इस वक्त किस हालत में है। आया ये रफा में है यानी मरफू है, ये मंसूब है, या ये मजरूर है। मगर जब आप लिखेंगे इस्म को, याद रखिएगा, अगर वो इस्म मबनी इस्म है, जो ऐसा कि आपको याद रखना चाहिए कि मबनी इस्म जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कलील है, आप उंगलियों पे उनको यानी गिन सकते हैं। जैसा कि 3 मिसालें मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है, इनको आप तीनों हालतों में वैसे ही लिखेंगे, कोई हरकत की, कोई यानी चीज की आप तब्दीली इसमें नहीं लाएंगे। दूसरी किस्म है मुअर्रब। मुअर्रब कहते हैं इस्म की उस हालत को जब आप उसकी आराबी शक्लें देंगे तो उसकी आराबी हालत में उसकी शक्ल तब्दील होगी, ऐसे इस्म को हम कहते हैं मुअर्रब। यानी ऐसा इस्म जिसकी आराबी हालत में तब्दीली आएगी और वह तब्दीली जो है उसकी शक्ल में भी नजर आएगी। अब याद रखना चाहिए, मुअर्रब जो होगा इस्म, इसकी 2 किस्में होंगी, या तो मुनसरिफ होगा या फिर गैर मुनसरिफ होगा। यानी अगर आप इस्म को देखेंगे, उसकी आराबी हालत में तब्दीली के साथ साथ उसकी शक्ल में भी तब्दीली आएगी, उस वक्त उसको हम कहते हैं मुअर्रब। ठीक है, अब ये जो मुअर्रब है, या तो ये मुनसरिफ मुअर्रब होगा या फिर गैर मुनसरिफ मुअर्रब। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसकी तफसील हम आगे करेंगे। इससे पहले है कि हम मुअर्रब पे आए, सबसे पहले आप मबनी इस्म पे आए। मबनी इस्म का मतलब ये है कि वो जो इस्म है वो तीनों हालतों में किसी न किसी आराबी हालत में होगा, चाहे वो नस्ब में होगा, रफा में होगा, जर में होगा, मगर शक्ल उसकी सेम रहेगी, शक्ल में उसकी तब्दीली नहीं आएगी। अब जितने भी हम लेक्चर्स आपके सामने यहाँ बयान करेंगे, याद रखिएगा, रफा के लिए हम रेड कलर से डिजिग्नेट करेंगे और उसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। नस्ब के लिए हम ग्रीन कलर डिजिग्नेट करेंगे, उसका जो एरो है वो नीचे की तरह करेंगे। और जर जब भी हम मेंशन करेंगे, इसका जो कलर है ये हम तकरीबन मरून कलर की तरह करेंगे, और इसका जो एरो है इस यानी तरीके से होगा, यानी आपके राइट साइड में इसका एरो होगा, यानी आगे की तरफ इसका एरो होगा। इस तरह हमने जो आप जितने भी लेक्चर्स आप आइंदा इंशाल्लाह देखेंगे इस्म के ऊपर, जब भी आप इस्म के ऊपर देखेंगे आरबी तब्दीली, तो उस वक्त आप कलर से पहचान सकते हैं कि ये जो इस्म है ये इस वक्त रफा में है, नस्ब में है या जर में है। अब मबनी इस्म मैंने आपके सामने अर्ज किया, ऐसा इस्म है जिसकी 3 आराबी हालतें होती हैं, क्योंकि हर किसी इस्म का कोई ना कोई आराबी हालत तो होगी, मगर याद रखना आपको चाहिए कि तीनों हालतों में वो एक ही नजर आएगा, एक ही शक्ल में होगा। जाहिरन कोई उसमें तब्दीली या कोई यानी जो उसके शक्ल में, उसके यानी हरकत में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मूसा, इसको रफा में भी ऐसे ही लिखेंगे मूसा, ऐसी हालत इसको नस्ब में भी रखेंगे और जर की हालत में भी इसको मूसा ही पढ़ेंगे। इसी तरह ईसा, 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 चाहे रफा हो, नस्ब हो, जर हो, तीनों हालतों में ये ऐसे ही लिखा जाएगा। यहया, 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 तीनों हालतों में यहया को ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह कुबरा, 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 तीनों सूरतों में ऐसे ही लिखेंगे। हुस्ना, तीनों सूरतों में ऐसे ही लिखेंगे। बुशरा, तीनों सूरतों में ऐसे ही लिखेंगे। याद रखना चाहिए, मबनी अस्मा की जो किस्में हैं बहुत ही कम है, यानी लेस देन 1% है तमाम कुरान मजीद में। तमाम जो हमारा अरबी ग्रामर है, मबनी जो अस्मा है उनकी किस्में बहुत ही कम है। ठीक है, याद रखना चाहिए कि हमारे पास इस्म जो होगा आरबी हालत में या तो रफा में होगा, नस्ब में होगा, जर में होगा, मगर जब उसकी शक्लें हम देखेंगे, अगर वो तीनों सूरतों में एक जैसा होगा, याद रखना चाहिए उस वक्त उस इस्म को आरबी हालत के हिसाब से मबनी इस्म कहते हैं। अब मबनी के बाद दूसरा इस्म जो है, इन्हें शक्ल और सूरत के हिसाब से उसको हम कहते हैं मुअर्रब। मुअर्रब का मतलब होता है 3 सूरतों में 3 शक्लें हो सकती है। मुअर्रब में पहली किस्म है जिसको हमने नाम दिया है मुनसरिफ। मुनसरिफ इस्म, मुनसरिफ इस्म मुअर्रब की वो पहचान है या वो किस्म है जिसमें तीनों एराबी हालतों में
इसम की 3 शक्लें होंगी। याद रखना चाहिए, अरबी में हमारे पास जो भी ज़ख़ीरा है इसम का, तकरीबन 85% जो हमारे अस्मा है वो मुनसरिफ अस्मा ही है, यानी वो ऐसे अस्मा है जिनकी शक्लें अलग अलग अरबी हालत में तब्दील होती है। ठीक है, और याद रखना चाहिए तनवीन वाले तमाम इसम जो है वो मुनसरिफ है सिवाय जमा सालिम मुअन्नस के। और कैसे लिखा जाता है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक इसम है किताबुन, रफा में ये लिखा जाएगा किताबुन, नस्ब में इसको लिखाएंगे हम किताबन, और जब भी ये इसम जर में चला जाएगा तो ये लिखा जाएगा किताबिन। ठीक है, किताबुन रफा मरफू, किताबन नस्ब मंसूब, किताबिन जर मजरूर। ठीक है, यानी ये मजरूर की हालत में होगा, यानी ये यानी जरी हालत में होगा, मजरूर होगा। इसी तरह कलमुन हमारे पास एक इसम है, अगर रफा में लिखेंगे तो कलमुन होगा, अगर आप इसको देखेंगे कलमन तो रफा में होगा, अगर कलमिन होगा तो ये जर में होगा। अब सवाल पैदा होता है, क्या ये जो अलग अलग हमने शक्लें दी उसकी अरबी हालत में, क्या इसकी अपनी क्या इसका अपना जो तर्जुमा है या इसका जो अपना माने है क्या वो चेंज हुआ? जवाब होता है नहीं, क्योंकि अरबी तब्दीली से जो इसम का अपना नाम है या इसम का जो अपना मतलब है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। चाहे इसम रफा में हो किताबुन, चाहे नस्ब में हो किताबन, चाहे जर में हो किताबिन, तीनों हालतों में इसका जो तर्जुमा है वो किताब ही होगा। अलबत्ता फर्क ये होगा कि अगर वो मरफू होगा यानी रफा में होगा, उस वक्त जुमले में उसका इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से होगा, नस्ब में डिफरेंट तरीके से होगा और जर में डिफरेंट तरीके से होगा, मगर तर्जुमा जो उस इसम का होगा वो सेम रहेगा, किताबुन, इसी तरह कलमुन, इसी तरह वलदुन अगर रफा होगा, अगर ये नस्ब में चला जाएगा तो वलदन, अगर ये जर में चला जाएगा तो वलदिन, तीनों का तर्जुमा सेम यानी लड़का। बिनतुन, बिनतन, बिनतिन, ये 3 सूरतें हैं बिन्त की, और याद रखना चाहिए ये जो इसम का असल एराब होता है, इसम का असल एराब वो रफा होता है, बट किसी कंडीशन की वजह से इसम रफा से निकलकर या तो नस्ब में चला जाएगा या जर में चला जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दुरूस में, क्लासेस में ये हम समझाएंगे किस वक्त इसम अपनी हालत, असल हालत यानी रफा में निकलकर नस्ब और जर में चला जाता है और उसकी वजह से उस जुमले में क्या फर्क आ जाता है, ये हम इंशाल्लाह आने वाले दुरूस में पढ़ेंगे। इस वक्त आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो इस चीज की तरफ होना चाहिए कि हमारे पास जो अरबी हालत है उसको हम समझे और ये समझेंगे कि अरबी हालत में मुनसरिफ इसम किसको कहते हैं। ऐसा इसम जो अरबी हालत में 3 अलग अलग हालतें दें, 3 अलग अलग शक्लें हो, रफा में ये हो, नस्ब में इस तरह हो और जर में इस तरह हो। एक और मिसाल है रजुलुन, ये नस्ब में रजुलन होगा और जर में रजुलिन होगा। बैतुन, रफा में बैतुन लिखा जाएगा, बैतन लिखा जाएगा नस्ब में, बैतिन लिखा जाएगा जर में। दारुन, घर, ये रफा में दारुन लिखा जाएगा, दारन लिखा जाएगा नस्ब में और दारिन लिखा जाएगा जर में। एक और चीज आप नोट कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपके सामने पिछले बार भी अर्ज किया था, जब भी दो ज़बर आता है उसके बाद अलिफ आता है। ठीक है, 2 ज़ेर और 2 पेश के बाद ये हालत नहीं होती। सिर्फ 2 सूरतों में ऐसा नहीं होता कि अगर आखिर में हमजा होगा या अगर आखिर में हमारे पास यानी गोल ता होगा, उस सूरत में 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं आता। यदुन रफा में है हाथ, यदन, आप देखिए 2 ज़बर के बाद अलिफ आ गया, ये नस्ब में है। यदिन जर में है। ऐनुन आँख, ये रफा में है। ऐनन नस्ब में है। ऐनिन जर में आ गया। मस्जिदुन रफा में, मस्जिदन ये नस्ब में इस तरह लिखा जाएगा और जब ये जर में चला जाएगा लिखेंगे हम मस्जिदिन। इसी तरह हमारे पास है नफ्सुन, रफा में, नफ्सन ये नस्ब में चला गया और अगर इसको हम जरी हालत में लिखेंगे, मजरूर लिखेंगे तो नफ्सिन। तो ये जो हमारे पास इसम है इसको हम कहते हैं इसमें मुनसरिफ या इसमें मुअर्रब मुनसरिफ।
यानी ये वो इसम है जिसकी शक्ल तब्दील होती है, और तकरीबन 85% हमारे पास जो भी अस्मा है वो इसी किस्म में आएंगे, यानी मुनसरिफ अस्मा में आएंगे, ये मबनी में नहीं आएंगे। तीसरी किस्म हमारे पास, अच्छा एक और कुछ और मिसालें यहाँ पर मैं आपको दे दूं, यानी मुनसरिफ की, यानी हमारे पास मुनसरिफ किस्म की जो 3 हालतों में 3 शक्लें तब्दील करता है। ये आप देखिए, शाइउन, ठीक है, शाइअन और शाइइन, सूउन रफा में सूअन और सूइन, जन्नतुन मैंने आपको बताया जन्नतुन 2 पेश है। उसके बाद आप देखिए जन्नतन, यहां पर हमारे पास 2 जबर के बाद अलिफ नहीं, और जन्नतिन ये जर में आ गया। इमराअतुन ये हमारे पास रफा है, इमराअतन ये हमारे पास मंसूब है, यानी नस्ब में आ गया। इमराअतिन ये जरी हालत में है। आपको मैंने अर्ज किया कि 2 पे, यानी आखिर में अगर गोलता होगा तो उसके बाद 2 जबर लगाने के बाद अलिफ नहीं आता। मदीनतुन रफा में मरफू है, मदीनतन मंसूब है, नस्ब में है, मदीनतिन जरी हालत में है। आयतुन ये रफा में है, आयतन ये नस्ब में है, और आयतिन ये जरी हालत में है। इसको हमने इसमें मुअर्रब नाम दिया मुनसरिफ। इसी तरह इसमें मुअर्रब की एक और किस्म है, दूसरी किस्म है, जिसको कहते हैं इसमें मुअर्रब गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ ऐसा इसम है जिसकी अरबी हालत तब्दील होती है, मगर 3 के बजाय 2 सूरतें होती है, यानी 2 तब्दीलियां आ जाती है उसमें। मिसाल के तौर पर रफा में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे आदमु, ठीक है, आदमु। नस्ब में वो बन जाता है आदमा, जर में भी वो बन जाता है आदमा। तो इससे पता चल गया कि इसम जब मुअर्रब गैर मुनसरिफ होता है तो उसकी सिर्फ 2 ही हालतें होती है, यानी 2 ही शक्लें होती है। रफा में वो अलग होता है, नस्ब और जर में वो एक जैसा दिखता है। जैसा यहां पर आपने देखा आदमु रफा में उसके आखिर में पेश है, नस्ब और जर में जबर जबर है। इसका मतलब यह है कि नस्ब और जर में उसकी शक्लें सेम लगती है, मगर कभी कभी वो नस्ब में होगा, कभी में जर में होगा। आप सवाल पूछ सकते हैं कैसे हमें पता चलेगा कि इस वक्त ये मंसूब है, यानी नस्ब में है या जर में है? तो वो उस वक्त का जुमला, वो कंडीशन आपको बताएंगे कि ये इसम इस वक्त मंसूब है या मजरूर है। वो कंडीशन आपको उसी जुमले में आगे आने वाले दुरूस में पता चलेगी। एक चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि ये जो सूरत है गैर मुनसरिफ, ये अक्सर और बेशतर उन यानी अस्मा पे आता है जिन पे हमारे पास 2 पेश नहीं आता, बल्कि पेश या जबर आ जाता है, जैसा कि आपने यहां पर देखा। और अक्सर और बेशतर जो ये गैर मुनसरिफ है, ये अक्सर इसमें अलम की किस्में है। इसमें अलम कहते हैं प्रॉपर नाउन, जो ऑलरेडी प्रॉपर है, जिसमें पैगंबर के नाम आते हैं, ठीक है, जैसे किसी खास शख्स का नाम आ गया, आदम वो आ गया, इब्राहिम वो आ गया, इस्माइल वो आ गया। जितने भी इसमें अलम है वो तकरीबन सब गैर मुनसरिफ अस्मा है, और इनकी तादाद भी तकरीबन 8% है। यानी अगर वो 85% है तो तकरीबन 8 से 12% जो अस्मा हमारे पास है वो गैर मुनसरिफ अस्मा है। बाकी बचा 1 या 2% तो वो हमारे पास मबनी अस्मा है, जो तीनों सूरतों में एक ही शक्ल में होंगे। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक और बात यह है कि गैर मुनसरिफ अस्मा में ये जो नस्ब और जर है वो दोनों में जबर जबर लास्ट में होता है, जेर नहीं होता। ठीक है, जैसा कि ऊपर आपने देखा 2 जबर 2 जेर में तब्दील हो गया जब नस्ब से वो जर में चला गया। मगर जो हमारे पास इसम मुअर्रब गैर मुनसरिफ है, इसमें 2 ही सूरतें हैं, और नस्ब और जर में जबर जबर ही आखिर में आ गया, जेर कबूल नहीं करता, अगरचे वो जरी हालत में भी होगा। और याद रखिएगा अक्सर और बेशतर ये जो किस्म है गैर मुनसरिफ इसम की, याद रखिएगा ये इसम अक्सर इसमें अलम की किस्मों में होगा। इसमें अलम आपको पता है प्रॉपर नाउन को कहते हैं, जो किसी शख्स का, खास शख्स का नाम जाहिर कर रहा हो। जैसा भी आपने यहाँ पर देखा, आदमो होगा तो ये मरफू होगा, आदमा होगा तो ये मनसूब भी हो सकता है, आदमा मजरूर भी हो सकता है, नस्ब में भी हो सकता है, जर में भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा?
उस वक्त के कंडीशन, उस वक्त के जो दूसरे अलामात है वो आपको बताएंगे कि आदमा यहाँ पर नस्ब में है या जर में है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, इसको आप खुद बताएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। इब्राहिमु भी लिखा जाएगा, रफा में इब्राहिमु, नस्ब और जर में इब्राहिमा, इब्राहिम। इस्माइलु, रफा में है इस्माइलु, इस्माइला, इस्माइला, दोनों सूरतों में एक जैसा नस्ब और जर में। इसी तरह इसहाकु, इसी तरह याकूबु, इसी तरह इसराइलु, इसी तरह यूसुफु, तालूतु, जितने भी हमारे पास इसमें अलम की किस्में हैं वो रफा में आखिर में पेश के साथ होंगी, और नस्ब और जर में याद रखिएगा, नस्ब और जर में वो आखिर में जबर के साथ होंगे। हालांकि ऐसे वो जाहिर होंगे मगर अंदर में वो नस्ब में भी हो सकता है, जर में भी हो सकता है। इसको फिर हमें जानना पड़ेगा कि नस्ब में किस सूरत में है और जर में वो किस तरह है। तो इस तरह आज का जो लेक्चर था वो बड़ा शॉर्ट लेक्चर था, थोड़ा सा मैंने लेट भी शुरू किया। मकसद इसमें यह है कि आपको ये जो अराबी कंडीशन है ये समझ में आ जाए। इस तरह आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ख़त्म किया। हमने जाना कि इसम जो है, इसम जानने के लिए हमारे पास 4 चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हमने ये समझ लिया, बल्कि आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, हमने समझ लिया कि इसम किसको कहते हैं और इसम को जानने के लिए 4 चीज़ों का इल्म हमें होना चाहिए। जब भी हम आप आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह जुमला बनाएंगे, इस्मिया बनाएंगे, जुमला इस्मिया पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले जब भी आप इसम देखेंगे आपको इन चारों चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि आया कि जो हमारे पास इसम है इसका जिन्स है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये किस अदद में है, ये 1 है, 2 है या 2 से ज़्यादा है, इसकी वसअत क्या है, मारिफा है या नकरा है, और ये किस आराबी हालत में है। ये जब 4 चीज़ें आपको पता होगा उसके बाद आप आराम से बता सकते हैं इस इसम के बारे में, और बहुत सारे रमूज आपके सामने खुल जाएंगे। तो इससे पहले कि आज मैं इस छोटे से लेक्चर को एंड करूं, अगर किसी साथी को कोई सवाल है इसके बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा, तो आप अपनी माइक खोल सकते हैं। इसको हम कुछ आपके सवालात आज ले सकते हैं, हमारे पास अच्छा टाइम है। तो अगर कोई भी सवाल होगा, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं। और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में हम जो हमारी बुक है, रिकमेंडेड बुक, यानी हमारे शेख आमिर सुहेल साहब की, जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान से ये पढ़ा रहे हैं, हमने भी उनसे पढ़ा है, सीखा है, जो इसके माहिर है, उनकी बुक भी हम यानी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। वो बुक जो है उर्दू में ज़्यादातर है, इंग्लिश में भी उसको हमने रोमनाइज करने की कोशिश की है। तो दोनों तरह से वो बुक आपके सामने हम रखेंगे, ताकि वो बहुत ही आसान तरीके से लिखी गई है और उसी तरह लिखी गई है जिस तरह मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। इंपॉर्टेंट बात हमारे दुरूस की ये है कि अगर आप इसी तरह से, इसी पैटर्न से इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे जो जरगॉन्स है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर रहम करम फरमाए। कोई सवाल है नहीं, अब्बास साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप पे भी फजल करम फरमाए। आने वाले दुरूस में और चीज़ें सीखेंगे। अब सबसे पहले ये है कि कुछ यानी मैं आपको कुछ जिसको हम कहते हैं मशक दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा। जो भी अभी तक हमने पढ़ा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कुछ मशक आपको दूंगा, जिसमें आपको जिन्स, अदद, वुसअत और आराबी हालत ढूंढनी पड़ेगी कुछ अस्मा की, ताकि आप इसमें प्रैक्टिस करते रहें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करेंगे कि इस काविश को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।